When his father has been a mentor for him, everything is managed by him. As a salesman, I used to feel sale purchase कर लिया तो मेरा काम हो गया. I have retired my dad. He can sit home and enjoy life. I am taking care of business. That was my mindset at the age of 28. I used to feel I want my dad to be relaxed. I am doing sale purchase. Business में क्या समझ में आता है? I was from auto parts. तो हमको यही लगता था सामान खरीदा, सामान बेचा, and that is business. You earn a profit. You know what to buy, at what price to buy, and what price to sell. That was business for me at the age of 28. That is what I thought. But I never visualized कि पैसा वसूलना और पैसा टाइम पे देना या बिफोर टाइम देना वो सबसे बड़ा काम है. Money management. How many of us lack this skill because it is not taught in any professional school or any school as such? Money management. Do you agree with me? Yes. So, आटे दाल का भाव बोलते पता चला. After losing my dad, I was insured for 35 lakhs. My dad had a claim of 5 lakhs. Justified? No. Is it justified? No. So I came into this industry with this mindset कि जिसको भी टच करेंगे उसके फैमिली में एटलीस्ट प्रोटेक्शन प्रॉपर होगा. I have not sold any child plan till the father is not adequately insured. Till date, it has been almost 19 plus years of my career. I have not sold a child plan. Why? If the father is not insured, does it make sense to plan for the child? No. आप चाइल्ड की एजुकेशन, मैरिज सब प्लान कर रहे हो, पैसा भरने वाला नहीं हो. Yes, PWB is there, but does PWB bring in enough money? No. Lot of people say yes, PWB is there. I also agree. I think child plan देना है और PW के बिना देना है तो गुनाह है और आपको ये गुनाह नहीं करना चाहिए. Sorry, maybe you guys may not agree with me. Some of you may not, but this is my mindset. Insure the earning member. Insurance is for the bread earner. I was just talking to some gentlemen over here. How much are you insured for? Or rather, let's start it the other way. Let's take objections. Is that okay? Yes. Okay, this is what I do. That's okay if it's blurred. Share your objections with me. Can you? Your worst or difficult objections. Are you all alive? Yes. Yes. Just पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि इधर कोई क्लेम वेम तो नहीं आ रहा है LIC का. प्लीज टेल मी. किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होता है मतलब? सर मेरा एक ऑब्जेक्शन आपका शुरुआत जो आपने Yeah, I will come into that only, please. विदाउट PWB देना नहीं चाहिए. मेरे साथ में एक केस हुआ कि मेरा जो क्लाइंट था वो कैंसर डिटेक्टेड हुआ है 2014 में और उसको बच्चे के लिए प्लान लेना ही है. That's a different case. मैं नॉर्मल सिनेरियो कर रहा हूँ. ओके. That's okay. PWB भी नहीं मिलेगा. PWB के दे दिया. अभी नहीं मिलेगा ना PWB. दे दिया हमने. अभी दिया कि पहले दिया था? अभी दिया. कैसे मिला? बिना PWB के दिया. हाँ, बिना PWB. मेरा ऑब्जेक्शन पूछ रहा हूँ. ये आपने तो सोल्यूशन बता रहे हो. तो कोई और केस है ना जो घर में प्रॉब्लम है. दैट्स सेपरेट. आई एम टॉकिंग सो अबाउट नॉर्मली इमोशंस होते हैं उन लोग को बच्चों के नाम पे एक निकालना है, वो एक है इमोशनली मतलब वो सिगरेट्स, अल्कोहल, कोकेन, ड्रग्स बेचने में बहुत प्रॉफिट है. क्या बेचना चाहिए? नहीं, फिर भी बिकता है. इमोशंस वेरी गुड. दादा को बोलो पोते के लिए या पोती के लिए प्लान करना है, चेकबुक, तिजोरी सब खुल जाता है. बट बेटे के लिए करना चाहिए कि नहीं? बराबर. I've just settled a claim of a big amount, 3.15 crores. The grandfather wanted me to plan for the child. I insisted to plan for the father. Sadly, we lost the father at the age of 49, almost 10 years in the policy. 3.14 crores is the claim paid by 9/21. You can check it with the branch. 3.1415 crores. बच्चे को दिया होता तो 22 साल का हो गया आज बच्चा, उस टाइम 12 साल का था. बच्चे को दिया होता तो क्या मिलता? कुछ अमाउंट LIC शायद दे देती मेच्योरिटी पे. बट विल इट गिव unearned income of the deceased? What are you selling? We'll come to that. Let's go to the next objection. Any objections? किसी को होता है क्या? फेयर है, प्रॉब्लम है, रिटर्न कम है,
हाँ सर, होता है। लोग बोलते हैं अभी क्या घर घर जाके बीमा बेचोगे, मेरे साथ हुआ था। अभी मेन ऑब्जेक्शन आ रहा है सर कि LIC प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उससे लोग डरे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा उस पर सवाल पूछ रहे हैं। सी जो भी कुछ पूछोगे ना, आई अज्यूम दैट यू हैव ट्राइड टू फाइंड द सोल्यूशन एंड यू नॉट गॉट द सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपने डीओ से पूछा था? हाँ सर, SBI प्राइवेटाइज कौन से साल में हुआ था? 1980s के हाँ, तो हम करीब। लोग उत्तर देते हैं, लेकिन LIC will be IPO will come maybe 10%, on the highest side 20% स्टेक बेचेगा। कोई भी कमाऊ पुत्र को बेचता नहीं है। But sir, 2611 करोड़ रुपया इस साल डिविडेंड दिया है, 5% प्रॉफिट ऑफ LIC का टू गवर्नर ऑफ RBI, उसी को देते हैं ना, यस फाइनेंस मिनिस्टर्स को देते हैं हम। 2611 करोड़ रुपया दिया है, 100 करोड़ की लागत लगाई है गवर्नमेंट ने और उसको 2600 करोड़ दिया। आपको लगता है कि वो 100% बेच देगा? 10% बेचेंगे, 1 लाख करोड़ का IPO आएगा। दैट्स ओके, न्यू चैलेंज। सर हम लोग भी हम कॉन्फिडेंट है कि LIC एकदम परफेक्ट जा रही है, सही चल रहा है, बट कैसे हम उनको ये करें? अभी कैसा है मार्केट में Convince नंबर्स कैसे फैल करें? गए हैं ना कि वो LIC प्राइवेट हो रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर भी ऐसा बोलते हैं कि न्यूज में आ रहा है, टीवी पे आ रहा आप है, इसको LIC के गूगल employee कीजिए, protest you कर will रहे find थे। lot of solutions, lot of big trainers, lot of big people in LIC have given solutions for that. आप YouTube पे देखेंगे बहुत सारा कुछ मिलेगा, बट एक सिंपल चीज है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन होता है ना, वो हमको हिलाता है, हमारा कन्विक्शन हिलाता है। आई एम जस्ट हियर फॉर यू गाइस टू, क्योंकि वो LIC का IPO का 2 घंटे का बैलेंस शीट स्टडी करोगे, वो सब करोगे, उसका वैल्यूएशन होगा, बहुत अच्छा है। IPO आना मेरे हिसाब से बेटर है फॉर ऑल ऑफ अस। जो थोड़ा सा भी लैकिंग दिख रहा है किसी चीज में, वो और भी बेटर होगा, और भी ट्रांसपेरेंसी आएगा, और भी कमिटमेंट बढ़ेगा, बिकॉज अभी थर्ड पार्टी कोई चेक करेगा। इट्स बेटर, आई फील सो, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ। एनी अदर ऑब्जेक्शंस? एनीबडी? यस। सेम सिनेरियो से रिलेटेड है, जैसा IPO आएगा, पब्लिक जहाँ भी हम लोग इंश्योरेंस निकालने जाते हैं तो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, हर जगह पे आ रहे हैं कि तो बोल रहे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन ये लोगों का कि तो एक मिनट, बाकी कौन सा ऑप्शन है, कौन सा अदर कंपनी गवर्नमेंट का है जो LIC के हिसाब से इंश्योरेंस दे रहा है? बाकी तो सभी 100% प्राइवेट कंपनीज है, Yes. उसमें भी लोग डाल रहे हैं ना। आज 65% जो LIC का शेयर है मार्केट का, 35% बाकी के 26-27 कंपनी डाल रही है, तो दे आर तो ऑलरेडी प्राइवेट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? उनका बोलना है कि अभी तक गवर्नमेंट था तो हम लोग का ट्रस्ट था, बट अभी 10% आप लोग IPO सर, ला रहे हैं कि आपकी जिसका शुरुआत ट्रस्ट है ना, प्राइवेटाइजेशन। जिसका ट्रस्ट है, ऑनेस्टली आपका ट्रस्ट SBI में भी होगा, LIC में भी है, बहुत जगह पे ट्रस्ट है। कितनी जगह पे आपने पैसा डाला है? आपका HDFC में भी ट्रस्ट होगा, आपने पैसा डाला किधर है आज तक? वो ट्रस्ट का फैक्टर में LIC के आगे आई डाउट कि अगले 20 साल में किसी को कुछ होगा। हाँ, 20-25 साल बाद जो हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो ट्रस्ट चेंज हो जाएगा, जो 30-35% ही स्टेक रह जाएगा मार्केट में, या 20% रह जाएगा मार्केट शेयर, तो ट्रस्ट फर्क पड़ सकता है। बट फॉर द नेक्स्ट 20-25 years आई डोंट थिंक सो ट्रस्ट इज अ प्रॉब्लम। ट्रस्ट में आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ट्रस्ट लोगों को नहीं है, मुझे खाली कन्विक्शन, आप जो इस रूम में बैठे हो उनका कन्विक्शन चाहिए। मुझे मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। ऑनेस्टली, जब मैं मार्केट में होऊंगा तब मैं मार्केट का बात कर रहा हूं। मैं आप लोग के साथ, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेयर? रिटर्न्स कम है? ओके, गुड। एनीबडी मोर? इसी टॉपिक रिलेटेड LIC का बोनस कम हुआ है इस साल। एनीबडी मोर? स्टडी किया होगा ना, बोनस कम हुआ है। सर नॉर्मल ऑब्जेक्शन आते, टर्म बहुत ज़्यादा है एंड टर्म का कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा है। लेट्स टेक फर्स्ट, रिटर्न्स LIC में कम है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? नहीं, टर्म मीन्स नॉर्मल टर्म दैट इज़ 5 years और 10 years, वो टर्म बोल रहा हूँ। सो दैट इज़ वेरी लेस, मतलब बहुत कम प्लान है जिसमें टर्म कम आते हैं। आपको कम टर्म का चाहिए? हाँ, तो वो नहीं है। लेट्स हैंडल द रिटर्न्स पार्ट फर्स्ट। यस सर, आपने बताया बोनस कम हो रहा है या रिटर्न LIC में कम है, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? चाइना में एवरेज हाइट 5 फुट है, 4.5-5 फुट। अमेरिका में एवरेज हाइट 6.5 फुट है, 6 फुट 6.5 फुट। इफ यू सी द अफ्रो अमेरिकन्स, दे विल बी 7 feet ऑल्सो। 14 साइज जूते का बिकता है उधर। इंडिया में क्या बिकता है? 9 साइज, मैक्सिमम 10, उधर 14 है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? सेफ रिटर्न RBI बॉन्ड्स, राइट? सेफ रिटर्न
कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो कि आप इक्विटी के साथ कंपेयर कर रहे हो? आप रिटर्न जब बोलते हो कम है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो पहले वो देखना चाहिए। शादी करते हैं दूल्हा दुल्हन, क्या देखते हो? दोनों का हाइट, हस्बैंड का टेक्निकली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चोजन अ कपल एंड सेड ब्यूटीफुल, जो 1 फुट बीवी लंबी हो और लड़का छोटा हो। मैच किससे करते हो आप? एक 100 किलो का आदमी अंदाजन 60-70 किलो की लड़की के साथ शादी कर रहा है, मैच हो रहा है। बट एक 100-150 किलो का जो है वो 60-70 किलो का, तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा मैच नहीं हो रहा है कपल। 60 साल का बुजुर्ग शादी करता है 25 साल की लड़की के साथ, मैच नहीं हो रहा है कपल, राइट? आप मैच किससे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट्स को, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स को LIC से मैच करो, टर्म इंश्योरेंस कॉस्ट निकाल दो, फिर रिटर्न बताओ किसमें कम है। RBI बॉन्ड 7.15% फ्लोटिंग रेट्स, मतलब हर अप्रैल 1 तारीख को रेट चेंज होगा। 7 साल का इन्वेस्टमेंट है। इन केस यू एक्सपायर और द इन्वेस्टर एक्सपायर्स, पैसा नहीं मिलेगा, 7 साल बाद ही मिलेगा, राइट? 100% पैसा पहला देना पड़ेगा, तब ब्याज चालू होगा। आप नहीं बोल सकते हो मैं इंस्टॉलमेंट पे RBI बॉन्ड ले रहा हूं, जैसे आप LIC पॉलिसी लेते हो। LIC पॉलिसी में डेथ हुआ क्या मिलता है? Sum assured. पहला चीज बेसिक सम एश्योर्ड गारंटेड, बोनस वोनस जो डिक्लेयर किया है वो भी मिलता है। इफ FAB एप्लीकेबल, पेबल, इफ नॉट पेबल, करेक्ट? व्हाट डू यू गेट विद एन RBI बॉन्ड? मैक्सिमम डेट पे आपको प्रिंसिपल वापस आएगा और जो इंटरेस्ट है बीच में ही आएगा, राइट? एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू वांट टू कंपेयर विद अ म्यूचुअल फंड? यस। जनवरी में मैंने 2021 में सपोज 10 लाख रुपए का एक सिंगल प्रीमियम या एक एंडाउमेंट लिया और मुझे म्यूचुअल फंड में मैंने डाला। डेथ हैपेंड इन मार्च, 31 मार्च, या यही समझ लो आजकल के 1 साल पहले डेथ हो गई। मार्केट वॉज ऑल टाइम लो, 26,000 इंडेक्स टच किया था, 26,600 ऑड पॉइंट्स। डेथ हो गए, क्या मिलेगा म्यूचुअल फंड में? NAV। LIC पॉलिसी में क्या मिलेगा? नॉर्मल एंडाउमेंट, जितना आपने सम एश्योर्ड लिया है, गारंटेड। यस। कैन यू कंपेयर एप्पल टू एन ऑरेंज? No. फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अपने बुढ़ापे के लिए किसने कुछ प्रोविजन का एटलीस्ट सोचा है कि बुढ़ापे में पैसा चाहिए होगा? हैव यू थॉट ऑफ इट? कुछ पैसा बुढ़ापे में चाहिए होगा, सोचा है? प्रोविजन किया नहीं किया मैं नहीं पूछ रहा हूं, सोचा है कि नहीं? Yes. क्या ये सोचा है कि मेरे तो बच्चे हैं, मुझे क्या जरूरत है प्रोविजन करने का, वही देख लेंगे? क्यों? बच्चों पे भरोसा नहीं है तो मार्केट पे कैसे भरोसा कर सकते हो? इफ यू डोंट ट्रस्ट योर ओन चिल्ड्रन कि दे विल टेक केयर ऑफ यू इन द फ्यूचर, asset allocation is important. All instruments are important. An RBI bond, a mutual fund, equity based or debt based, whatever you choose, everything is important. But पहले क्या चाहिए? सवेरे सवेरे शायद सब नहाए होंगे। Yes. जो भी चीज पहला कपड़ा पहना है वो टर्म इंश्योरेंस है। Okay. उसके बाद जो सूट वूट पहना है वो लग्जरी है, टाई पिन डाला, कुछ भी गिन लो। Some people can wear a hat also. I wear a turban. These are luxuries. Basic insurance है। You start with what? Always remember, start with basics. उसके बाद आप 3-piece सूट डालो, टाई पहनो, हैट पहनो, doesn't make a difference. But are your basics in structure? हम लोग क्या है, बेसिक का ठिकाना नहीं है। बात करते हैं कि यार वो कोई भी अमेरिकन मूवी देख के हैट पहनना है, हैट के ऊपर बो लगाना है, जो भी कुछ करना है वो सब देखते हैं। If something happens today, what will take care of your family? This you should be convinced. I'm not trying to sell you anything. First, पहला चीज तो क्लियर है, ना आप मुझसे कुछ खरीदने वाले हो, ना मैं आपसे कुछ खरीदने वाला हूं। अभी on that page at least? Yes or no? Yes. So whatever we are talking is for our good. And I promise you 2 things. One, whatever you know about insurance, your paradigm shift is going to happen today. कुछ तो भी आपका mindset change होगा. One. Second, if anybody feels
that your time is wasted. You give me your value, I will pay you back in cash or check. Sorry, cash की बात नहीं करते. आपका टाइम का पैसा मैं दूंगा. But if you feel it is worth it, I would expect something in results, in returns. Can you commit to that too? Yes. Yes. For the part-time people, how many of you are part-time? चलो कुछ full-time भी हैं. I believe your income today from LIC is less than the income that you are getting from other sources, right? That is the reason you are part-time. उसी वजह से part-time हो ना? Yes. Can I ask you one simple question? जितना टाइम आप उस जॉब में दे रहे हो, उसका 20% टाइम इधर दे रहे हो क्या? Commit yourself. 25% टाइम दे दो, एक साल के अंदर आप अपनी सैलरी को भूल जाओगे. I'll come back. I was into business, part-time agent from 2002 till 2016. But my success story, the reason behind it is my DO, Mr. Kamal Gaba. Like you have mentors. My mentor. Second, madness to learn something new. How many of you sell policies? ये प्रोडक्ट है, ये आलू है, ये कांदा है, ये गाजर है, ये मूली है. How many of you sell that? Where is the money? रेस्टोरेंट में खाना बना के देने में पैसा है कि रॉ मटेरियल बेचने में पैसा है? आपको क्या लगता है? खाना बना के देने में. और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बिरयानी या थाली बना के दिए तो पैसा किसमें ज्यादा आएगा? Agreed? Agreed. Stop selling products. Sell concepts. Right. Why I say sell concepts? What is like Jabi 2013? I believe the policies were closed. If I'm not wrong. Yes. There were a lot of people who had a fear. सब policy बंद हो रहा है, क्या होगा? Right? Like today they have a fear. Why is the bonus of LIC going down? LIC is mark to market. Everybody knows that. Yes. What was the market scenario of LIC investments on 31st March? You know that we have a 10 to 15% wealth in in stock market. Yes. हमारा पैसा जो भी है 15% स्टॉक मार्केट में है अंदाजित. मार्केट का हालत खराब हुआ, बोनस पे कितना फर्क पड़ा? मे बी 2 rupees. Yes. परसेंटेज में बात करो, मार्केट इज डाउन 50%, बोनस कम हुआ कितना परसेंट? लेस देन 5. 5%. हाउ मच ऑफ अ बिग इम्पैक्ट? एंड डू यू थिंक इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था? नहीं. Am I communicating? Yes. Yes. You'll see the difference in this year's bonus. If the market till 31st March is at where it is, you'll get a better bonus than last year. Yes or no? Yes. If you believe transparency is there in this industry, so you should know that it's mark to market. Returns कम है किसके comparison में? Apples are cheaper than oranges or vice versa. Forget it. Price जिसका जो है, जिसमें आपको return expected है. Now let's see a comparative product with any other company. As per IRDA regulations, 80% of your investment has to be in government securities for any insurance company. Do you know that? 80% of your investment has to be in government securities. If government securities is bought by a private company or is bought by our company, is it going to be differing in the returns? Please participate. Yes. If आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हो या हमारी कंपनी खरीदती है, पैसा एक ही जगह पे लगेगा तो रिटर्न क्या आएगा? सेम आएगा. बचा 10-15%. आप बोलते हो कि आपका एक्सपर्टीज ज्यादा है इक्विटी मार्केट में, योर रिटर्न्स विल बी वेरी हाई. I salute that. I agree to that. Maybe you give us 5% more, but what is the weighted average difference when I come to cost? Cost of an LIC policy, to maintain an LIC policy and one to maintain with a private company,
Do you know the cost? One, there is no rent of our premises. 2048 offices all owned by LIC. Yes? Electricity bill शायद मेरा और दूसरी कंपनी का सेम आएगा. Staff salary could be similar. Maybe LIC is paying less. I don't want to get into that things, but I assume even if it is same, number of policies handled by one branch compared to a private company, is it more? Yes. Sir, is it more or no? Yes, yes. Comparatively more? Yes. How many offices of LIC have been shut in the last 10 years? No. Any record? No. Any private company? हाँ. सुना है किसी कंपनी ने कोई ऑफिस बंद किया है? Yes, बहुत सारे हर कंपनी ने ऑफिस बंद किया. LIC ने क्यों नहीं बंद किया? They have probably 200-300 offices across India. We have 2048 offices. Why are we wanting to have satellite branches, more service to the client? Why are they shutting shops? They are cutting on cost because they cannot match on cost. If everything remains the same, investment same जगह पे, return same, तो why are we better? Because our overhead cost is less. But we will go bad if the number of policies reduces. If you guys don't sell, we will be at comparison with the others. ये जो आज आपको guaranteed products का shield मिला हुआ है, do you know how powerful it is? Future में नहीं रहने वाला है हाँ. if we don't sell. Remember those words. Okay. What is your greatest hope in life? Whenever you get bored, हाथ उठा देना. Okay? नहीं सर, परफेक्ट. सो जाओगे तो भी बता देना. परफेक्ट. वैसे वो नियत और नौबत आनी नहीं चाहिए. What is your greatest hope in life? How many of you want this? To be financially secured? Yes? बस इतना ही. बाकी सब already secured है. Yeah? Okay. Let's see. Happiness and security. Sorry. कुछ लोग सर समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा हिंदी मिक्स करते हैं. देखिए, मुझे हिंदी मराठी मैंने आज डिस्क्लेमर दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ, मुझे दोनों नहीं आती. इंग्लिश भी नहीं आती है. बम्बईया भाषा आती है थोड़ी बहुत ही. काम चला सकते हो तो ठीक है, चलेगा नहीं तो सर. मुझे पैसे मिल चुके हैं. फाइनेंशियली सिक्योर मतलब मुझे पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं है. ये सब कोविड हुआ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ या इंडिया में लॉकडाउन हुआ, how many of us were least bothered of the next month's maintenance? 6 months घर बैठ के खाना पड़ेगा. किस किस को तकलीफ हुई आपके इन एंड अराउंड, आपके इन एंड अराउंड, वो कभी ना हो. सपोज आज कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि आज के बाद आप काम ना कर सके, या लॉकडाउन परमानेंट इन नेचर, आप काम ही नहीं कर सके, आपके फैमिली का इनकम को क्या फर्क पड़ सकता है? दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी. फर्क नहीं पड़ना चाहिए है, वो आपको है. हाउ वुड यू फील 8 o'clock in the morning जब बैंक खुलता है, आपके खाते में उतने पैसे डाल दिए जाएं जो आप खत्म ना कर सके उस महीने में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में. बाकी उड़ाने जाओ तो तेलगी जी ने 1 करोड़ रुपए एक रात में उड़ाया था. We'll not talk about तेलगी. We'll talk about for your bread and butter, basic needs. If you have to spend, you are not bothered today. How many of you want that? हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दो, चाहिए किसको है? आप समझे अभी क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटी? कि घर बैठा हूं, कुछ नहीं कर पाता हूं, तो भी दाल रोटी का मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे का एजुकेशन, बच्चों का शादी, मेरा बुढ़ापा, मुझे कुछ हो जाता तो वाइफ का बुढ़ापा सेफ है. How many of you can vouch for it? I'll tell you the biggest selling point for you in financial services is this point. आप इसके ऊपर जोर दीजिए. पहले अपने लिए सोचिए, whatever you can do for that, or what would you aspire for that. ये बहुत साल पहले मैंने एक लाइन सुनी थी, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए दिल के करीब है. 8 बजे सवेरे जब बैंक खुलता है, आपके खाते में उतने पैसे आ जाएं जो आप उस महीने में खर्च ना पाएं, और अगले महीने फिर आए और आप कुछ ना करो तो भी हर साल आते रहे. आप ना रहे तो आपकी वाइफ के पास में आते रहे. फील सो पावरफुल है. Yes. सोचने में ही मजा आता है. Do you think Bharat Parekh might be bothered about monthly expenses? No. Deepak Dabalia from your branch, some of you 922, he'll be bothered कि इस महीने का दाल रोटी का राशन किधर से आएगा. No.
Do you know what was his last year's income? From new business, almost 1.5 crores. Yeah. Almost. क्या उसका हार्डवेयर हमारे से अलग है? Same. हार्डवेयर 2 टांग 2 हाथ 1 नाक 1 मुंह 2 कान सब सेम है ना? Yes. सॉफ्टवेयर में लोचा है, हाँ हमारे सॉफ्टवेयर में लोचा है, क्यों उसकी तरह नहीं सोच पाते हैं? जे उसके पास भी वही हार्डवेयर है, वो भी उसी ब्रांच में है, वो भी वही प्रपोजल फॉर्म भरता है, वो भी वही प्रोडक्ट्स बेचता है, तो उसको 1.5 करोड़ रुपया साल का क्यों आता है और मुझे कम क्यों आता है? ये सवाल आपको जगाना चाहिए रात को। जगाता है कि नहीं? सोचा ही नहीं कभी वो क्या करता है, ख्याल है ना अपने जेब में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? Next is happiness and security, carefree old age. Be sure my family will be secure. Retain my health and my job. Have respect for my family and friends. Hope and security. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैस्लो का थ्योरी पढ़ा है किसी ने? मैस्लो का पिरामिड। आपके लाइन की जो आइटम्स है, अच्छा लेट्स पुट इट दिस वे, आपने बोला रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट में खाना नॉर्मल से महंगा होता है, घर से महंगा होता है, एग्री। क्या रेस्टोरेंट वाला भी सेम चीज जैसे आप घर में बनाते हो सेम बना के रेस्टोरेंट में दे तो क्या आप उसको पैसे दोगे? नहीं. दाल चावल वैसा ही बनाए जैसे आपके घर में बनता है तो आपको पैसे मिलेंगे? नहीं. क्यों मिलते हैं आपको पैसे? उसके मसाले में कुछ फर्क होता है, कुछ क्रिएटिव करने कुछ क्रिएटिव करना है। वेरी गुड, दैट्स बुलजाय। हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारा क्या क्रिएटिव है? जीवन उमंग, जीवन लाभ और जो भी एंडाउमेंट पॉलिसीज है, यूलिप है, सब LIC ने बनाया। मैं सेम टू सेम बेच रहा हूं, तो मैं घर के दावल चावल दूसरे को बोलता हूं पैसे देके खरीदेगा? नहीं. कोई तो भी खरीदेगा जो बेचारा भूखा बैठा है। हर कोई खरीदेगा? बड़ा खरीदेगा? नहीं. उसके लिए क्या चाहिए? कुछ मसाले चाहिए रेस्टोरेंट के जैसे। सॉरी, एग्जाम्पल्स आर वेरी बेसिक, they are not thought of before coming to you, it is just on the spot I am giving you these examples. मसाले जो आपको चाहिए, जो स्पाइस चाहिए, जो आपको क्रिएटिविटी चाहिए है, वो किधर से आएगा? हर एक बंदे का अलग है। How many of you tell the client कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खरीदो, तो आप में और वो रोड पे बैठा जो बटाटा बेच रहा है उसमें क्या फर्क है? वो भी टोकरा लेके जाता है 4 भाजी लेके, मेरे पास ये भाजी है, ये है, खरीद लो। तो आप क्या बोलते हो? अरे ये आप 60 रुपए किलो दे रहे हो, मॉल में तो 50 रुपए या 40 रुपए में घर डिलीवरी मिलता है, तो मैं उससे क्यों ना लूं? What is the question arising of all the bad elements coming into business? Price cutting. Yes or no? Yes. रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो क्या ये जो आपने 200 रुपए का दाल का प्लेट लगाया, ये दाल का कॉस्ट तो 20 रुपया था, नहीं. मसाला डाला आपने 10 रुपए का, 30 रुपए ले लो। नहीं बोलते. किसी के रेस्टोरेंट में जाके ये पावर है क्या किसी? नहीं. यस। नहीं. बट आपसे लोग बात करते होंगे ना ऐसे, क्योंकि आप उसको बात करने का मौका दे रहे हो। मोस्टली you should not be talking about the product. Why I say you should not be talking? You should be talking about concepts. If you have given him, hypothetically आपने उसको सिक्योरिटी बेचा है, टर्म इंश्योरेंस दे रहे हो, और साथ में अपना क्रिएटिविटी डाला, बीमा किरण बना के बेच दिया। Is बीमा किरण अवेलेबल फॉर सेल? No. ओल्ड एजेंट्स? No. 111 प्लान बंद हो गया ना? रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑफ टर्म इंश्योरेंस ऑन मैच्योरिटी। बट कैन यू सेल? Yes. किसने मना किया? बीमा किरण बंद है मगर बिकता है, देख सकते हो ना? Yes. Add a term, add some component of an endowment or an anand or a laksh or a labh, whatever you want. So what do you become? Anything. भाजी मिक्स किया तो पाव भाजी बन गया। क्या था कि शायद किसी जिसने बनाया होगा उसके घर में 3-4 भाजी 3-4 दिन से नहीं यूज हो रहा होगा, इसलिए उसने बना दिया, एंड ऑफ द डे बच्चों को खुश कर दिया, पाव बाजार से लाया, चलो नवा डिश है। इनोवेटर तो ऐसा ही होगा। सिजलर का इनोवेशन ऐसे ही हुआ था। वॉर टाइम पे दे डिड नॉट हैव प्रॉपर कुकिंग, सामान नहीं था, तो लकड़ी के प्लेटर पे आग जला के कुछ भी जो बना आधा भुना आधा कच्चा खा के सिजलर बन गया। आज उसका पैसा देते हैं हम। सिजलर तो सुना ही होगा ना लोगों ने, उसका हिस्ट्री गूगल करो। वॉर टाइम पे एक
मजबूरी में बनाई हुई डिश है जिसके आप प्रीमियम पैसे देते हो, 600, 650, 700 रुपए प्लेट देते हो, 1000 रुपए प्लेट देते हो. व्हाट इज दैट? अपॉर्चुनिटी है जिसको एनकैश किया गया, एक डिफरेंट ऑप्शन है. इफ यू स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स अलोन, you will not have that kind of leverage which I want you to have. My mission as an advisor to you, not to be an agent. One, polish yourself to that extent कि कोई भी आदमी आवे आपको referral मिले. How many of you genuinely get referrals? Then you should not be a part-timer. Yes or no? Yes. Yes. आपको रेफरल मिल रहा है, किस बात का मिल रहा है? नॉट बिकॉज व्हाट यू सोल्ड, व्हाट बिकॉज यू नो एंड हाउ यू कैन हेल्प. यस और नो? Yes. इसी वजह से पैसा मिलता है ना. Yes. केमिस्ट तो बहुत है, मगर जब तक एच ड्रग लेने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा वो केमिस्ट दवाई नहीं बेच सकता. आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर. आजकल केमिस्ट में ऑनलाइन भी आता है 15% ऑफ, 10% ऑफ. जो छोटा दुकान लेके बैठा है वो बेचारा बोलता है हाउ विल आई मैच अप. वो भिवंडी में गोडाउन लेके बैठा है, कुरियर से उसके बंदे आते हैं, सस्ते में दे जाते हैं दवाई. दवाई सेम है, बट किसी भी केमिस्ट का ऑनलाइन मिलना अवेलेबल है. हाउ मेनी डॉक्टर्स बाईपास करना है ऑनलाइन जूम मीटिंग में अपन बाईपास करेंगे कल? यस, हो सकता है. नहीं. और उसको पैसा कितना देते हो? डॉक्टर भट्टाचार्य probably charges 6 to 10 lakh rupees for one small cut on your heart. शायद ज्यादा लेते होंगे अभी, बट अंदाजन 10 से 15 लाख रुपए एक बाईपास का लगेगा. आराम वो से. जूम पे क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं बताता है कि कौन सी ब्रांड की छुरी लेके आपका हार्ट काटेगा या रिब्स काटेगा, उसमें से ये रिपेयर करेगा. और ये वॉल है जो कौन सा प्रिंस पाइप्स चल रहा है ना आजकल टीवी पे, yes. ये प्लास्टिक का प्रिंस का वॉल है जो आपके हार्ट में मैं लगा दूंगा. बोलता है क्या वो? No. प्रोडक्ट का डिटेल देता है? नहीं. क्या बोलता है? हार्ट का रिपेयर कर दूंगा. आप फाइनेंशियल उसका पूरा रिवैम्प कर दोगे. डू यू हैव टू स्पेसिफाई कौन सा रॉ मटेरियल लगा? ये रॉ मटेरियल, ये प्रोडक्ट आज बंद हो गया, कल नवा आएगा, तो क्या आप धंधा छोड़ दोगे? नहीं. This was my take in 2013 when I used to tell people. That was a fear of people. प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कुछ नवा आएगा तो कुछ तकलीफ हुआ. How many of you have actually been affected? A term insurance has 18% GST and an endowment has 4.5% GST. कितने जनों ने आपसे पॉलिसी नहीं लिया क्योंकि GST लग गया है? नहीं. किसी ने ऐसा तो ऐसा नहीं। कोई किसी ने. और ये फेयर था कि नहीं तुम लोग? Most of you might have had. Yes. पहले था, लेकिन जब ये सब आया मोबाइल का जो बिल आप रिचार्ज करते हो या बिल भरते हो उसमें जीएसटी लगता है. इंटरनेट लेते हो जीएसटी लगता है. ये सुनो सर, Yes. पेट्रोल लेते हो कोई टैक्स लगता है? 31 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद रहे हैं हम लोग, बाकी टैक्स है. लगता है कि नहीं? Yes. लगता है तो लगता है, मैं क्या करूं? मेरे लिए अकेले लगता होगा तो प्रॉब्लम है, जब सबके लिए लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? What is your greatest fear? अपने आप को इज्जत से, dignity and freedom. What is dignity? Respect. What is the difference between एक बूढ़ी औरत and a dignified old lady? Sorry, I am using an example of a lady. But what is the difference? गाड़ी चलाते चलाते अचानक एक बूढ़ी औरत गाड़ी के सामने आ गई. अचानक one very polished, elegant old lady tripped and came in front of my car. दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक बैलेंस है. बुढ़ापे में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? The difference is only how you portray yourself. आपके पास क्या है? देना किसी को कुछ नहीं है. आपके पास पैसा बुढ़ापे में है. How many of you have seen old people with specs के ऊपर टेप लगा हुआ, सेलो टेप लगा हुआ है, या कोई एक डॉक्टर का टेप लगा हुआ, जॉइंट देखा है? Yes. कांच टूटा हुआ, या वो शर्ट पहना है जो प्रॉब्ली 5 साल पहले खरीदा था, नवे कपड़े नहीं खरीदे जब से रिटायर हुए या जॉब लॉस हुआ है. Have you seen people? Have you seen people who are age 60 and above yet go to work because there is back home somebody who needs bread and butter and is dependent on his income, or he does not have sufficient money to run his own household? How many of you have seen that? If you meet youngsters at a better age and help them plan their money,
Can you avoid such situations for them? Don't. I agree, Almighty has a lot of role to play in this. But don't you think financial decisions also have some role to play in this? Yes. Can I give you one exercise? Yes, sir. एक सिंपल एक्सेल शीट में आप लास्ट जब से कमाना चालू किया है उसका वैल्यू डालो, कितना आपके पास, आपने आज तक कितना कमाया है. The people who are in salary will be knowing it much easier. The people who are in agency also will be knowing it because records मिल जाता है. लास्ट 20 साल में आपने कितना कमाया है और वो पैसा किधर है, उसका 25% दे सकते हो मुझे आज, आपके बुढ़ापे के लिए, मेरे लिए नहीं चाहिए. एवरेज पर्सन इफ ही इज अर्निंग 10 लाख रुपीज, एवरेज ले लेते हैं, लास्ट 20-30 साल से कमा रहा है, 3 करोड़ कमाया, उसको 25% कितना हुआ, 75 लाख. क्या किसी भी आपके क्लाइंट के पास 75 लाख ऑन द स्पॉट देने की क्षमता है? No. तो आपकी गलती है. गलती आपकी है क्योंकि उसको आपने 10, 15, 20, 25% सेविंग का आदत नहीं लगवाया. यस और नो? Yes. Yes. वही आदत लगेगी तो फायदा किसको होगा? Don't talk about you will earn a commission or you will get a 5% trail. Not interested. What will he get? As an advisor, what is your job? To secure his future. Secure your client. Yes. If डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बाईपास करना है, क्या आप उसको पूछते हो कि ये स्टेंट डालने का तेरे को कितना पैसा चाहिए? या एक स्टेंट में किकबैक कितना दोगे? पूछा है कभी? नहीं. क्या जाते हो आप? आई एम ब्रेथलेस, मेरे को ये थोड़ा इशू है, मेरी ECGs बराबर नहीं है, ब्लॉकेज है, आप ब्लॉकेज निकाल लो, whatever is your fee, I will pay you. Why? Because you treat him as a professional. When will somebody treat you as a professional? When you have some qualifications. आपने डॉक्टर ने कुछ पढ़ाई किया होगा ना, तभी सर्जन बना, MD बना है, कि ऐसे ही बन जाते हैं? Yes? Yes. Don't talk about quota now. पढ़ाई किया होगा ना, Of course. पढ़ाई किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है. हाउ वुड यू फील कंफर्टेबल है कि एयरक्राफ्ट में बैठे हो और पायलट बोलता है कांग्रेचुलेशंस गाइस, वी आर एट 3000 फीट टुडे एंड दिस इज माय फर्स्ट फ्लाइट. और मैं भूल गया कि प्लेन उतारते कैसे. आप में से कोई मुझे मदद कर सकता है? क्या हालत होगी आपकी? यू विल फील टू गुड ना, मजा आ जाएगा. Anybody suffered from COVID in the past? I suffered COVID last month. Staying in the bed, I was not bothered that I will live or I will not live. But I was bothered there are a lot of people yet whom I have to insure for their good. I was in bed for almost 3 weeks. And I would say last 4-5 days I could start working. Before that I was not in a position to work also. Working means on the come. The only reason I feel that we all are here is a mission given by the Almighty. उसने ऊपर वाले ने मुझे झाड़ू मारने को भी दिया ना, तो मैं इतना अच्छा झाड़ू मारूंगा कि ऊपर से ऊपर वाला देखेगा, बोलेगा किसी ने अच्छे से साफ किया. डू यू हैव दैट zeal with you? क्या आप वो करना चाहोगे? नहीं. Yes. किसी भी परिवार में गए तो उसके पास कुछ भी दुख सुख हुआ और उसके लिए आपने प्रोवाइड करके रखा है. हाउ वुड यू फील? अच्छा लगेगा. आई एम नॉट सेइंग कि आपके क्लाइंट का डिमाइस होना चाहिए आपको पैसा मिलने के लिए या उसको पैसा मिलने के लिए. उसने अपने एजुकेशन का, बच्चे का प्लानिंग किया है, बेटी की शादी के लिए प्लान किया है, बड़ा घर लेने के लिए प्लान किया है, जो भी किया है, बुढ़ापे के लिए प्लान किया है. इफ यू कैन हेल्प हिम प्लान व्हाट ही वांट्स, नॉट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट, हाउ वुड यू फील? गुड, बैड, अगली, प्लीज डिफाइन. Good. मुझे उम्मीद है कि गुड ही लगा होगा. Good, good. बिकॉज आई डोंट नो, आई थिंक यू आर ऑन साइलेंट मोड. बात करना तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए यू गाइस डोंट स्पीक. इज पॉवर्टी एंड डेथ अ फेयर फॉर ऑल? No. सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब फेयर्स में आते हैं ना. Yes. फास्ट जाना है. हाउ डू यू सेल इंश्योरेंस अदर देन सेइंग मर गया तो क्या? Anybody? That is the only way to sell? No, sir.
It's a good way. I'm not denying that fact. That is an age old. Everybody starts with that. But is that the only way to sell? No. Statistics. I think it's not very clear. Can you help me with that? It's clear. Living too long is a bigger scare than dying too early. How many of you agree? जिंदा रहना बुढ़ापे में बिना पैसे के ज्यादा तकलीफदायक हो सकता है कि जल्दी मरने से. यही ट्रांसलेशन मेरे को समझ में आया है. ज़्यादा. बुढ़ापे में जिस बंदे को आपने पैसा दिया है, आपका हाथ हमेशा कमाते थे तो कैसे था, देने वाला. और ऐसे करना पड़े तो कितना कंफर्ट आएगा, दुख होगा कि नहीं. बहुत. So what you want, and this is the average lifespan as per a government की website है, you can check it. Just put on Google average lifespan of an Indian. हर state wise आपको statistics आएगा. These figures are of Maharashtra. Since we are in Mumbai, I chose this. 70 साल की उम्र तक आदमी रहता है, 73 साल प्लस लेडी रहती है. आज काम करना बंद हुए आप किसी वजह से. When can the income stop? Death, disability and disease. Are you with me on that? Yes, sir. इसी वजह से income and COVID of course. चलो. Death, disease में गिन लेंगे COVID को. Death, disease and disability. इसकी वजह से income बंद होती है. तो आज से लेकर 70 साल तक male and 73 female, पैसा कहाँ से आएगा दाल रोटी का? Have you thought of it? पैसा कहाँ से आएगा? कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा Yes. कि करना चाहिए? Let's put it that way. करना चाहिए. करना चाहिए. I just try to put it on some graphs. ये annual income नहीं है, monthly income है into lakhs. आधा स्लाइड किस वजह से कट रहा है I don't know. But सालाना मंथली ये बंदा 2 लाख रुपए समझो कमाना शुरू किया है और इनकम बढ़ रही है. कब तक बढ़ सकती है? जब तक जॉब है या जब तक बिजनेस है, राइट? जब तक एक्टिव इनकम है. Yes. खर्चे कैसे होते हैं? हमेशा इनकम से कम होते हैं? नहीं, ज़्यादा होता है. नहीं, ज्यादा होते हैं क्या? मुझे नहीं पता. खर्चे हमेशा इनकम से ज्यादा होते हैं, तो पूरा कैसे करते हो? ये तो मिस्ट्री है, नवा सीख रहा हूं. नॉट ऑलवेज आई थिंक. हाँ, always. Sometimes. हो सकता है किसी सिचुएशन में ऐसे हो जाए, बट इफ ऑलवेज देन हाउ विल योर मैच? यू हैव टू सेल समथिंग. आई डोंट एग्री कि हमेशा खर्चे ज्यादा होते हैं. बढ़ते जाते हैं. खर्चे की एस्पिरेशन ज्यादा हो सकती है, बट खर्चे तो उतने ही होंगे जितना आपके पास पैसा है या जितना आपके दोस्तों के पास पैसा है जो आपको उधार दे सके. Yes. अदर अल्टरनेटिव विल बी इन-लॉज. बिजनेस आइडिया. व्हाट वुड यू वांट और व्हाट वुड यू एस्पायर? कि जब भी आपकी इनकम बंद हो, आपको इनकम के जितना पेंशन मिले. वुड यू एस्पायर फॉर दैट और नो? Yes. Or I'm not only talking to you, I'm talking through you to your prospective clients. What would they prefer? They should have a passive. Income जिस दिन बंद होती है, passive income उतनी आनी चाहिए जितनी active income है. Yes. Some of you are in job, so what is active income? जो आपके बॉडी, माइंड और टाइम के एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और यूसेज के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, जिसमें आप इन्वॉल्व हो, आपका एफर्ट इन्वॉल्व है. दैट इज एक्टिव इनकम. व्हाट इज पैसिव इनकम? मैं जीऊं या मरूं, मेरे घर में वो पैसा आएगा. 4 टाइप ऑफ इनकम होती है. एक्टिव, सेमी एक्टिव. सेमी एक्टिव रेंट में गिना जाता है, कभी कभार देखना पड़ता है, रोज देखने की जरूरत नहीं है. पैसिव इनकम, जो मैं रहूं या ना रहूं वो आवे. और एक पैसिव इनकम विच इज गारंटेड. ये 4 टाइप की इनकम है. चारों होनी बहुत अच्छा है, बट लास्ट वाली नहीं होनी सबसे दुखदायक हो सकती है हायर एज में. गारंटेड इनकम विदाउट एफर्ट्स, दैट इज व्हाट यू शुड एस्पायर फॉर. रियल लाइफ में क्या होता है? जितना आप कमा रहे थे, पैसिव इनकम उससे बहुत छोटी होती है. क्योंकि लॉट ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग टू अबाउट योर क्लाइंट्स ऑल्सो, वो लोग क्या एज्यूम करते हैं, ये पीएफ का जो फंड आएगा ना रिटायरमेंट पे, वो बैंक में डालेंगे, उससे कुछ महीने, हर महीने कुछ पैसा आएगा. वो ये है इनकम, जो एक्चुअल इनकम से काफी कम होगी. और बहुत जल्द
वो आपके खर्चे के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। बराबर। फॉर्च्यून मैगजीन ने एक सर्वे किया था 10,000 लोगों के साथ। फर्स्ट कैटेगरी वाज वेरी लो इनकम बट गारंटेड, आप यू कैन सिनोनिम इट टू अ गवर्नमेंट जॉब, कोई निकालने वाला नहीं है, एक बार घुस गए तो गारंटेड है कि पैसा आएगा ही आएगा, बट बहुत कम आएगा। सेकंड वाज मीडियम एंड थर्ड वाज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में ऐसे था या तो बहुत पैसा आएगा या कुछ नहीं आएगा, नो गारंटी ऑफ जॉब, नो सिक्योरिटी, नथिंग। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो 48% पीपल वेंट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट टाइप ऑफ जॉब जो गारंटेड है, कोई एक बार जॉब में घुस गया तो निकाल नहीं सकता है। आज भी लोगों का कई हद तक यही एटीट्यूड है टुवर्ड्स मनी। सो इट्स वेरी गुड फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स एज सच, क्योंकि आप क्या बेचते हो जनरली? सिक्योरिटी बेचते हो, और जो 48 में 100 में से 48 बंदों को सिक्योरिटी चाहिए है और 130 करोड़ आबादी है, तो क्या प्रोस्पेक्ट की कोई कमी होनी चाहिए? नहीं। मैं तो बहुत मस्ती में एक स्टेटमेंट देता हूं कि 130 करोड़ शिद्दत से मेहनत करते हैं आपको रोज एक नवा प्रोस्पेक्ट देने के लिए, और फिर भी हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रहा है। सही बात है। मस्ती होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। या जाए। व्हाट डू यू मार्केट? क्या आप एक पॉलिसी बेचते हो कि पॉलिसी क्या कर सकती है वो बेचते हो? क्या कर सकते हैं? बेनिफिट्स। आप पॉलिसी नहीं बेचते हो। या रिमेंबर दैट, दो यू ऑन डॉक्यूमेंट, आप एक डॉक्यूमेंट डिलीवर भी करोगे, सब कुछ करोगे, बट पॉलिसी क्या कर सकती है उस परिवार के लिए वो सोच के बेचोगे ना, तो जो सम एश्योर्ड 4 लाख 5 लाख 6 लाख हो रहा है, उसके पीछे एक जीरो लगेगा, पीछे, आगे नहीं। वेरी गुड। Why? Now, who's the latest entrant and is not started selling? कोई है ऐसा जो नवा एजेंट है और जिसने बेचा नहीं? I believe you already done 100 policies. That's what sir told me. Congratulations to you. Hats off. To be honest, मेरी आज तक 100 नहीं हुई है एक साल में। I've never been able to cross 20-25 lives in a year. 2-3 साल को छोड़ दो, उसके पहले की बात करो। Whenever I was a part time, तो 15-20 लाइफ में गुजारा चल रहा था। Yes, any new entrant who's hardly sold any policies? कोई है ऐसा? Anybody like to talk to me? Yes? वेरी फ्रेश। How long have you been in this industry? 3 months. Any sales till today? Sorry? 1. कितने का? क्या बोल के बेचा? आपके खुद के लिए लिया है कि दूसरे किसी? एक सवाल आपसे पूछूंगा, जिसको भी आपने बेचा, कुछ बोल के बेचा कि मैच्योरिटी पे ये पैसा मिलेगा? कौन सा प्लान बेचा? जीवन। वेरी गुड। मतलब इतने साल तक भरो, इतना पैसा आएगा, उसके बाद भी लाइफ कवर्ड है। यस। Right? I would want you to stress more on benefits rather than figures of policy. Policy का फिगर कभी बताने का कि हर प्लान को गोल के साथ एसोसिएट करो उसका। जैसे आपने बोला उसके बच्चे के लिए प्रॉब्लम उसने, राइट? नाउ व्हेन यू गो टू, कितने साल का 25 साल का पॉलिसी बेचा है, तो तकरीबन 5 लाख का 2.5 गुना मिलेगा, 12.5 लाख। आई हैव सम स्मॉल थंब रूल्स, तो मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, राइट? 12.5 लाख। उसको लगता है 12.5 लाख एजुकेशन के लिए सफिशिएंट होगा, इसलिए उसने पैसा दिया। आपने कौन सा कॉलेज बताया उसको? इंडिया में बॉम्बे में कुछ कॉलेज बताया होगा ना, आज कॉलेज का इतना फी है। नाउ यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बट नाउ लुक एट द अदर वे। इफ ही इज फाइनेंशियली साउंड, बॉम्बे में है, तो उसको NMIMS का बता सकते हो। आज 25 लाख रुपए लगता है मैनेजमेंट के लिए। जब तक बच्चा बड़ा होगा ये पैसा डबल होगा? 50। यस और नो? आज से 20-25 साल कॉस्ट डबल होगा कि नहीं? यस। उस टाइम पे शायद डबल होगा या ट्रिपल होगा। आई समटाइम्स से दिस स्टेटमेंट, मुझे ऐसे लगता है कि एजुकेशन इंडिया में फ्री हो जाएगा। आपको लगता है सर? बिकॉज ही फील्स कि 12 लाख रुपया एजुकेशन के लिए सफिशिएंट है, तो वी कैन टेल हिम कि मेरे हिसाब से एजुकेशन का प्लानिंग मत करो, क्योंकि हो सकता है कि एजुकेशन फ्री हो जाए। क्या आपको लगता है एजुकेशन इंडिया में फ्री होगा?
श्रीलंका में बाय द वे फ्री है. Even if you want to be a doctor, a PhD or anything, education in Sri Lanka is 100% government sponsored. No सभी के fee. लिए, सर? Sorry? सभी के लिए? सभी के लिए. क्या इंडिया में ऐसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है. राइट? मुझे लगता है हो जाएगा. नहीं आपको लगता है हो जाएगा तो उसके लिए प्लान कर ले. आपको क्या लगता है कितना पैसा लगेगा? आज आप 2-4 कॉलेजेस का मास्टर्स का ही बात करें, कभी भी डोंट टॉक अबाउट 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड प्लीज. क्योंकि 10वीं 12वीं का पैसा टिल ग्रेजुएशन दैट शुड कम फ्रॉम हिज एक्टिव इनकम. You should always talk about post-graduation. If he is capable of sponsoring 10 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, he should plan for it. हो सकता है बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा जरूरत भी ना पड़े, बट पैसा होना इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह से उसका ड्रीम एजुकेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए. Are you convinced on that? Yes. Now I'm going to give you some very interesting theory. I would be happy if somebody can read it for me. Anybody would like to volunteer? You clear nahi hai wo. Can you read it? Yeah? I will tell you what it is. Yes, please. X refers to वो X है जो कट रहा है. I don't know why कट X रहा है. refers to the number of years Years, एक- when you go to the work and earn Active income. active income to meet your needs. आप जब भी X में X एंड Y थ्योरी है. X थ्योरी बोलती है कि जब भी आप काम पे जाते हो वो X है, उससे जो पैसा आता है उससे घर चलाते हो और कुछ सेविंग्स भी करते हो तो वो X है. ठीक है. एक्टिव इनकम को मैंने X गिना है. इज दैट अंडरस्टूड? Yes. जो भी आप सालाना पैसा कमाते हो उसमें से उस पैसे से या तो सेविंग्स करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे या खर्चा करोगे. और तो कुछ नहीं करते हो ना. पैसे से और कुछ होता है? या सेव होता है या खर्च होता है. दो ही चीज होगी ना. तो दिस वी कैन कॉल मेन एट वर्क. आदमी कमाता है तो पैसा घर में आता है. वाई थ्योरी है जब भी एक उम्र पहुंच जाएगी जब आपको इनकम कमाने की क्षमता नहीं रहेगी. दिस इज वाई थ्योरी. मगर घर खर्चा चालू रहेगा क्या? Yes. जो भी आदमी जीवित है, इवन इफ इज ऑन अ वेंटिलेटर, पैसा चाहिए कि नहीं? Yes. पैसा चाहिए. Yes. तो पैसा के लिए कमाई बंद हो गई तो भी पैसा चाहिए. That's what we spoke about. People above 60, 65, sometimes they are working because they have to work. How would it be that you love to work and then you are working? How many of you actually love the work that you do? Less than 50%. मतलब कुछ भी अगला जन्म भी मिला तो ये काम करने को मैं खुशी खुशी तैयार हूं. Yes. जो जन्म में मिला है उसमें मैं खुश हूं. आई एम नॉट सेइंग यू विल नॉट स्ट्राइव टू डू बेटर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज मनी एट वर्क. बुढ़ापे में पैसा काम करेगा ना, क्योंकि आप नहीं काम कर सकते हो. पैसा काम. दोनों में से एक कुछ भी काम करेगा, पैसा एंड ऑफ द डे घर में आना चाहिए. जब भी आप एक्स फेज ऑफ लाइफ में होते हो तभी वाई के बारे में कितनों ने सोचा है? जब आप पैसा कमा रहे हो तो उस लाइफ के बारे में कभी सोचते हो कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा और मेरी कमाई नहीं रहेगी? डू यू थिंक अबाउट इट वेरी ऑफ इट? पीपल डोंट थिंक बिकॉज चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, सोशल स्टैंडिंग, मस्ती मजाक, क्या बोलते हैं, योलो, यू लिव ओनली वंस, ये सब खर्चे याद आते हैं और बुढ़ापे के लिए कोई सोचता नहीं है जनरली. क्योंकि हैव यू डन एन एनालिसिस, आपकी कमाई का कितना % आपको पैसा एक्चुअली चाहिए है जीने के लिए? कभी किया है ये? खुद की एक्सेल शीट्स कौन मेंटेन करता है घर खर्चे की? खर्चा मेंटेन, कुछ अंदाजा तो सबको होता है कि एक्स अमाउंट कमाया है, इतना खर्चा है, फिक्स्ड कॉस्ट 30% तो रहता है. 30-35% हाउस होल्ड एक्सपेंस. बच्चों का एजुकेशन जोड़ लिया. हाँ. ओके. लाइट, टेलीफोन, सोसाइटी मेंटेनेंस, सब कुछ आ गया इसमें, राइट? Yes. दवा दारू दवा दारू नहीं होता. 55% पैसा लगता है. और घर का EMI. आई कैन गिव यू एक्सेल शीट्स टू कैलकुलेट. नहीं, EMIs don't come in fixed cost. EMI is you purchase some luxury, उसका कॉस्टिंग अलग आएगा.
दे से दैट 30% खर्चा होना चाहिए, 30% EMI होना चाहिए, 30% सेविंग होना चाहिए और 10 पैसा अयाशी होना चाहिए। अयाशी मतलब सडन एक्सपेंस कभी आ गया, मस्ती मजाक, हॉलिडे, पिकनिक, पार्टी, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस समझते हैं? सैटरडे नाइट। सो दोज आर इंडल्जेंस, सिगरेट, तंबाकू, उसमें कुछ पैसा जाता है। जब आप खर्चा नोट करोगे ना तो सब आएगा। व्हेन वी कैन डू अ डिटेल्ड एक्सरसाइज जहाँ पे पूरा एक्सेल पे हम ट्रेन करते हैं कि आपको उसका पाई चार्ट बनता है। 55% खर्चा ऐसा है जो आपके नहीं रहने पे भी होगा। Am I communicating? Yes. 55% expense is what you will need even if you are not alive. Now I'm asking you one question. आपका कोई गोल है? सबका कोई ना कोई गोल होगा। बच्चों का एजुकेशन, खुद का बुढ़ापा। Yes? Yes. What would you prefer? जिस दिन गोल का डेट आएगा, सपोज बच्चे का एजुकेशन है 25 साल बाद, और 25 साल जब होगा उस दिन आप डिसाइड करोगे would you want to plan for it then No. or simply found at a time whether or not उस दिन सोचेंगे कि पैसा है कि नहीं है, कि आज से प्लान करेंगे? क्या प्रेफर करेंगे? आज से प्लान। आज से प्लान करेंगे। Most of you might have done. I go with that assumption. Okay. अभी एक छोटा सा आपको बताता हूं मैं। Lot of times people say mutual funds. I sell a lot of mutual funds. It's not that I am against mutual funds. How many of you actually work in the kitchen? Kitchen में काम करते हो कोई? Ladies तो of course by default. But anybody else? Yes. कभी कभार कितने टाइप के चाकू होते हैं? 2-3 टाइप के तो होते होंगे। हाँ, एक बटर नाइफ होता है, एक नॉर्मल नाइफ होगा, एक चॉपर होगा। चॉपर से ब्रेड पे बटर लगाएंगे? लग सकता है, लग सकता है, बट लगाएंगे क्या? और बटर नाइफ से नॉनवेज फ्रिज में से निकाल के काट सकते हो? पॉसिबल है यार, डोंट से नॉट पॉसिबल। एफर्ट लगेगा ज्यादा, एफर्ट लगेगा, बट पॉसिबल है। क्या अपने फाइनेंस में हमारे टूल्स बराबर है? नाइफ इज अ टूल। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके लिए कौन सा टूल लगाना है वो आपको चूज करना है। और एज एन एडवाइजर हर प्रोडक्ट अच्छा है। सो लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से म्यूचुअल फंड्स खराब है, और ये म्यूचुअल फंड्स जो खाली बेचते हैं बोलते हैं इंश्योरेंस खराब है। हाउ कैन यू डिफाइन दैट? यस, खाना खाते हैं, स्टेपल डाइट में क्या क्या आता है? चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दही, पापड़, अचार, स्वीट, और भी एक आध दो कुछ हो सकती है। सब कुछ आता है। Yes. What spices up your life? अचार। मजा खाने को आता ना, बट पूरी थाली आपको अचार की दे दी जाए, मजा नहीं। हाउ विल इट बी? कितने दिन खाना खाओगे? ओके, लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। 6 महीने तक आपको सिर्फ एप्पल दिया जाए खाने को, तो डॉक्टर के पास ही जाना। Definitely डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। इज इट गुड? No. तो हर टूल इंपॉर्टेंट है। डू नॉट डिफेम एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। एवरीबडी हैज अ माइंडसेट। म्यूचुअल फंड्स बेचने वाला बोलता है मैच्योरिटी पे मैं LIC से बेटर हूं, एग्री टू दैट, बट क्या मैच्योरिटी तक पहुंचने का गारंटी आप ले सकते हो? तो उसी बारे में मैं कुछ बात कर रहा हूं। इज इट ओके? नॉर्मल सेविंग्स करोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंश्योरेंस, क्या होगा? सिंस द PPTs आर नॉट क्लियर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ये 2021 से आपने सेव करना चालू किया, सालों साल लगेंगे एक कॉर्पस बनाने को। सपोज मुझे इधर 1 करोड़ रुपया चाहिए, 2021 में चालू किया, 2030 तक 1 करोड़ चाहिए। कोई भी SIP, RD, एनी अदर फॉर्म ऑफ सेविंग वो मिलेगा? आसार है, if percentage remains the same and if capital is same, safe, तो वो 1 करोड़ मिलेगा। Yes or no? What if, this is what I am telling you as a gift to you, what if आज ही उसको 1 करोड़ का गारंटी दिया जाए?
और मेच्योरिटी पे भी 1 करोड़ दिया जाए, हाउ विल इट फील? आप बोलते हो, आप सब समझते हो, बट क्या ऐसे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? 1 करोड़ आज आप टुकड़े कर करके भरो और मेच्योरिटी में भी 1 करोड़ दूंगा, क्या किया मैंने? Endowment and term. I am talking about a life insurance product along with any of your savings. Yes? Yes. आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेविंग का है, 30 ईयर होराइजन दे रहे हो, एक रीजनेबल परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको आएगा. बट 30 इयर्स में इफ दिस जेंटलमैन डाइज ओवर हियर, क्या मिलेगा? 1 करोड़. ये पैसा मिलेगा खाली. शुड आई ड्रॉ इट ऑन अ पेपर? Yeah. यस और नो? समझ गए? समझ गए ना? परफेक्ट. इंश्योरेंस में क्या मिलेगा? जितना आपने सोचा था पहले वो, Yes. प्लस ये. इज इट अ डिफरेंस? Yes. इस बात पे पॉलिसीज बेचनी चाहिए, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. वी सल्यूट ऑल द फाइनेंशियल एडवाइजर्स. सब प्रोडक्ट अच्छे हैं. इवन अ पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स किसी के लिए शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आरडी घर से लेके जाती है या ऑफिस से वो एडवाइजर रोज या हर हफ्ते या हर महीने पैसा लेके जाते हैं. जो आदमी को खुद जाके पोस्ट ऑफिस में लाइन लग के वो 500 रुपया या 1000 रुपया या 5000 रुपया हर महीने जमा करना होगा, हाफ द पीपल विल नॉट हैव एन आरडी अकाउंट, क्योंकि हर महीने जाके इतना सिंसियरली लाइन में लग के कोई पैसा नहीं भरेगा. सो इवन दैट आरडी इज डूइंग गुड. कोई सुस्त है या काम में बिजी है, पैसा है बट जाने का नहीं है, तो उनके लिए आरडी भी अच्छा है. एवरी प्रोडक्ट इज गुड. The only difference is what you want to choose for your family. Now, what is this intersection? This intersection means जितना आपने सेव किया और जितना आप सेव करना चाहते हो, ये कैपिटल आपका इधर और जो इंश्योरेंस में आपने डाला, तो किधर ना किधर मर्ज होगा. ये मर्ज इज जब तक नहीं होता है तब तक ये रिस्क है. Yes. So this is the risk. ये जो मैंने ग्रे में रखा है, ये ग्रे एरिया क्यों रखा है? जब तक ये मैच नहीं होता है तब तक ये रिस्क है. And as an advisor, we recommend our clients to transfer the risk to somebody else. अभी आज के पीपीटी में एक पोर्टर का स्लाइड डाला है, तभी ये वापस से इसके साथ कोरिलेट करेंगे. Financial discipline is more better than financial intelligence. Half of the chartered accountants or the MBA finances or anybody more in this industry, they might be very intelligent compared to you, but never be shadowed. A financial discipline. Why discipline with insurance? Because there is a binding to pay every year. जो ये every year का binding नहीं होता, तो half the policies would have been lapsed. जो भी ये सालाना है, quarterly है, monthly है, whatever mode you've chosen is separate. Because there is a binding every year, there is a financial discipline, only then the wealth is created. Four non-compromising needs. Can you associate yourself? Maintain a family lifestyle. Do you agree? Yes. ये non-compromising है. क्या आप अपने परिवार को जहां पे हो वहां से नीचे आते देख सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में? Yes or no? Nobody wants to. Children education, is it a priority? Most of you have young children going to school and colleges. Yes? Children marriage to a certain extent. आज से 20 साल पहले marriage was the only priority. Today maybe marriage is a lesser priority compared to education. Priorities can change, but फिर भी पैसा तो दोनों में लगेगा. And the last one, a dignified retired life for self and spouse. What is dignified? बागबान सबने देखी है. Yes. अमिताभ बच्चन का स्टोरी सबने देखा है. उससे पहले अवतार पिक्चर आया था, सबने देखा है. बागबान जब चोपड़ा जी ने बना रहे थे, he said in an interview we heard that this story was 20 years before. ये 20 साल पहले इस पिक्चर को बनाना चाहते थे. वो 20 साल बाद वो सेम स्टोरी उन्होंने बनाई और फिर भी हिट हुई. आज भी सिमिलर स्टोरी, उससे शायद 20 साल पहले अवतार आई थी राजेश खन्ना की. Some of you might have seen. Yes.
आज भी वो स्टोरी बने ना तो आज भी हिट होगी, क्योंकि आज भी घर परिवार में कई जगह पे वही स्टोरी चलती है. How many of you will agree or not agree? Half of the people staying with their parents are staying in Mumbai because real estate cost is very high outside, Yes. not because of love and affection. Sadly, but the truth. How many of you agree, don't agree? Irrelevant. But this is the truth. आधे जन माँ बाप के साथ इसलिए रहते हैं और इल ट्रीट भी करते हैं. एंड हेल्पेज इंडिया वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, यू विल फाइंड maximum abuse of senior citizen is by their own children. Yeah, right. Is it a good story or sad story? Sad. Somewhere in our school days we should have been taught two different subjects compared to what we are taught. One, what Japanese have been taught. फुटबॉल मैच के दौरान जापानीज ऑडियंस ने पूरा स्टेडियम साफ किया आफ्टर द वर्ल्ड कप. वो खुद को गंदा नहीं करते हैं, बट जो बंदे दूसरे गंदे करके गए वो भी साफ करके गए. Japanese are supposed to be the most intelligent people when it comes to personal relations, most dignified people, most respectable people. Second, school should teach us money. जो मैं छोटा सा आज कोशिश कर रहा हूँ, इस स्कूल में हमको सिखाया जाना चाहिए. एक आध हिस्ट्री ज्योग्राफी मिस हो गया तो चलेगा, मगर ये पैसे, क्योंकि कुछ भी करो आप, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, इंश्योरेंस एजेंट बनो, कुछ भी करो, आप पैसा कमाओगे और उस पैसे को या तो सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे, और कुछ नहीं करने वाले हो. और उसको मैनेज करना आना चाहिए. There have been people who have committed suicide in COVID times because they could not match with their expenses. ये तो रोज स्टोरी सुनी होगी आपने, कई जनों ने सुसाइड किया है. किंगफिशर के एक पायलट ने सुसाइड किया था विद इन 1 month ऑफ किंगफिशर एयरलाइन रिमूविंग द स्टाफ. एक पायलट की एवरेज पगार ₹1,00,000 महीने से ज्यादा होगी. Yes. मुझे नहीं पता कितनी है, बट मोर देन $1,00,000 a month. Yes. इमेजिन एक महीना भी विदाउट इनकम नहीं जी सका. तो गलती किसकी है? मनी मैनेजमेंट की. पायलट की गलती नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं गया है. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कुछ ना कुछ उसमें गलती है. Are you convinced with non-compromising needs? इसमें से कोई भी चीज आपको लगता है नहीं होना चाहिए? Yes, bachelors would say child education and child marriage नहीं चाहिए, जब तक वो बैचलर है. Yes, you probably bachelor, married, good. Any bachelor who will associate with it? Yeah. So आपके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होगा. बट जहां पे भी यू माइट बी विथ योर पेरेंट्स, मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल, Yes. खुद का बुढ़ापा वो अपना देख. इंपॉर्टेंट ना. Of course. तो what you require is savings and protection. All of you agree? But what does life insurance give you? आपने ये स्लाइड जो देखी थी, ये सेविंग्स है. ये साथ में मैंने प्रोटेक्शन लगा दिया दूसरे स्लाइड में. ठीक है ना. ये रेड लाइन जो आ रही है प्रोटेक्शन है. तो लाइफ इंश्योरेंस क्या देता है? Saving and protection. आपको सेविंग एंड प्रोटेक्शन चाहिए, बट लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट व्हिच गिव्स यू फर्स्ट प्रोटेक्शन, बाद में सेविंग दे. क्योंकि सम अश्योर्ड डे 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका सेविंग्स हो रहा है. इज लाइफ इंश्योरेंस अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय यू टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ योर बेनिफिशियरीज? Yes. यस और नो? Yes. सो ये जो जिग्सॉ पजल्स होते हैं, उसमें इसमें एक पिक्चर डाला है इंश्योरेंस और रिस्क. रिस्क को खत्म करने के लिए सिर्फ इंश्योरेंस काम आएगा. व्हाट इज रिस्क? जो रिस्क क्या है? जो आपने सोचा है रिजल्ट, उससे विपरीत कुछ भी आया तो रिस्क है. यस और नो? आपने सोचा आप 100 साल तक जिएंगे, 60 साल के पहले कुछ हो गया, रिस्क है. आपने सोचा बुढ़ापे में आपको पेंशन आएगा, जो भी आपका घर खर्चा है उससे 10-20% ज्यादा, और उससे 20% कम आया तो रिस्क है. तो उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए. यस. 4 टाइप का रिस्क हो सकता है. भाजी काटते टाइम उंगली कटने का रिस्क है फॉर एमेच्योर्स लाइक मी, Yes. Absolutely. नॉट फॉर प्रोफेशनल्स लाइक यू. बट उस रिस्क को क्या इंश्योर करना चाहिए? Yes. नहीं, जरूरत नहीं है. Okay, sorry. उसको रिटेन कर सकते हैं. कुछ होगा तो 2-4 दिन दवा करके ठीक हो जाएगा. यस.
बच्चा साइकिल चला रहा है, शिन पैड्स, नी पैड्स डाल के उसको आपने साइकिल चलाना सिखाया, साथ में 2 होते हैं ना साइकिल के साथ में स्टैंड लगा के देते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं, बट उसको क्या बोलते हैं, अभी मेन रोड पे नहीं जाना। क्या किया आपने, रिस्क को कंट्रोल किया। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप सीट बेल्ट डाल के 60 की स्पीड पे बॉम्बे पुणे हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, रिस्क तो रोड एक्सीडेंट्स का है, बट इफ यू आर गोइंग एट 60 विद अ सीट बेल्ट सेफ, व्हाट हैव यू डन, कंट्रोल किया रिस्क। यही 160 की स्पीड पे जाओगे तो क्या होगा, हैव यू कंट्रोल्ड द रिस्क, सीट बेल्ट भी डाला है, गाड़ी भी अच्छी है, मर्सिडीज में जा रहे हो, बट 160 पे जा रहे हो तो चांसेस ऑफ रिस्क इज मच हायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग रिस्क? Risk is whatever you have visualized, a result which is other than that. That is risk. सीसॉ कितनों ने किया है बचपन में? आजकल शायद बच्चे नहीं करते होंगे। सीसॉ, पेरेंट को बिठा के हम सीसॉ करते थे। डू यू नो दैट? यस और नो? हमारे मदर फादर हमारे साथ में सेकंड साइड पे बैठते थे, हम छोटे से एक हल्का सा पुश लेते थे, मम्मी पापा नीचे और हम ऊपर सीसॉ पे। इंश्योरेंस इज दैट सेम सीसॉ। छोटा सा प्रीमियम देते हैं, इतना बड़ा लोड है जो हमारा इंश्योरेंस का है कि नहीं? इंश्योरेंस का लोड क्या है? बच्चों का एजुकेशन, वेलबींग ऑफ द फैमिली, चाइल्ड मैरिज, खुद का बुढ़ापा। प्रीमियम देके क्या किया आपने? फलकम लगा दिया, एक छोटा सा लीवर बिठा दिया, जिसकी वजह से छोटा भी पुश करते हैं तो वो दूसरी साइड पे चला जाता है। So this premium which you pay acts as an acting force for the entire financial plan to be in place. Is it understood? Yes. Is the examples very basic? Yes. जो हमने लाइफ में किए हुए उसके रिलेटेड एग्जांपल्स यूज करता हूं मैं। Now these few slides are my learnings from my guru गोपीनाथ सर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा हमको दिया था स्टार्ट में, हमने जब सीखे थे। एक्टिव इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल हाउस होल्ड इनकम, क्या परसेंटेज है आपका? नाउ लेट्स अज्यूम दिस पर्सन अर्न्स 50 lakhs, स्पाउस का इनकम 4 lakhs है, अदर इनकम्स उसका बैंक एफडी से, रेंटल इनकम और डिविडेंड से, टोटल 59 lakhs. These will be your prospective clients. Who should be your prospective client? Who has the money. That's what they say, na? Money, authority and need, man. क्या चाहिए? आपसे प्लानिंग कराने के लिए उसको पैसा होना चाहिए। He should be the decision maker and he should have a financial need for the product. Only then is your prospective client. तो ये लिस्ट में 59 लाख रुपीस उसका घर का इनकम है। तो what do you think? Does he need insurance or his wife needs insurance? आप तो बोल दिया, बट गोपीनाथ सर के साथ रहने से ना एक छोटा सा उन्होंने एडिशन दिया। उन्होंने बोला A/H रेशियो। व्हाट इज A? 50 lakhs divided by 59 lakhs comes to 84%. %84 है इसका खुद का एक्टिव इनकम। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ। आप लोग का एक्टिव इनकम कितना है परसेंटेज वाइज? इफ ये इनकम नहीं रहता, ये 0 हो गया, तो टोटल फैमिली इनकम विल बी ओनली 9,25,000। जिस फैमिली को 50 लाख या 60 लाख के इनकम की आदत है, उसकी इनकम सिर्फ 10 लाख रह जाए तो क्या लगता है आपको? बोट हिल जाएगी कि बोट स्टेबल रहेगी? डूब जाएगी। तो आपको क्या करना है? इंश्योरेंस के उसको फ्लोटर्स देने हैं, लाइफ गार्ड के जैसे आप उसको बांध के देते हो ना, तो वैसे उसको कुछ देना है। आज हो सकता है जो आदमी 50 लाख कमा रहा हो उसको लगे कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए है जिसमें कमाई ज्यादा है, मेरे को वेल्थ क्रिएशन करना है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेल्थ क्रिएशन और व्हाट यू हैव टू प्रोटेक्ट? इसीलिए मैं बोलता हूं जस्ट गो टू गूगल टुडे एंड पुट मैस्लोज थ्योरी। सबसे पहले फाइनेंशियल पिरामिड समझते हो आप? इजिप्ट में सुना होगा आपने, yes. एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड बोलते हैं। उसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, कितने भी तूफान आए, कितना भी अर्थक्वेक आए,
जनरली वो टॉपल नहीं होता, वो गिरता नहीं है। आपने देखा होगा बिल्डिंग सीधी खड़ी होती है तो कई बार पुरानी बिल्डिंग गिर सकती है, बट एक ट्राइपॉड एक एग्जाम्पल यही है, ये ज्यादातर नहीं गिरता है। एंड इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, व्हाट हैपेंस, योर आप कोई भी एक हाई राइज बिल्डिंग देखते हो ना, तो कई माले वो पहले बेसमेंट में बनाते हैं, जो उनका फाउंडेशन बेस फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु हैव नॉट इंश्योर्ड देमसेल्व्स एडिक्वेटली। व्हाट इज एडिक्वेट? आज आप घर नहीं जाते हो तो आपकी कमाई जो कल से नहीं आती है, तो परिवार की दाल रोटी का प्रोविजन आपने प्रॉपरली किया है, जो नहीं किया है तो दूसरे को देने का आपको कोई हक नहीं है। If you are not adequately insured, you have no right to give insurance to anybody. Sorry to say that. And whatever is your life cover, you will not be able to sell more than 4 to 5 times that sum assured. कोई भी जिसने हाईएस्ट सम अश्योर्ड बेचा है on a regular basis, he has to be insured at least 20-25% of that value. Only then can you talk about higher sum assured. आज 20 करोड़ का बात करना है तो कम से कम आपका 4-5 करोड़ का बीमा होना चाहिए, होगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। दीपक दबालिया फ्रॉम योर ब्रांच, डज ही सेल 5 लाख सम अश्योर्ड? no Average ticket size, he says my premium average ticket size is 12 lakh rupees. सम अश्योर्ड नहीं है, प्रीमियम 12 लाख रुपए है। भरत पारेख सर का भी वैसे ही होगा। बड़े हैं वो, बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो बीमे को समझ सकते हैं। आपने भरत पारेख की बुक पढ़ी है किसी ने? Yes, sir. उसमें एक स्टेटमेंट है, वो बीमा क्यों बेच पाए, क्योंकि जब से उन्होंने बीमा बेचना चालू किया, एक आदमी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता था उसको उन्होंने बीमा बेचा और उस बंदे की इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ हो गई। तो वाइफ को जब वो उस टाइम पे फिजिकल चेक्स थे देने गए, तो वाइफ ने एक सवाल पूछा, क्या ये चेक हर साल आएगा कि हर महीने आएगा? 60,000. एंड ही सेड दैट आई डिड नॉट हैव वर्ड्स टू से कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम आएगा। उस दिन से भरत पारेख वो बने जो भरत पारेख हैं आज। उन्होंने बीमे को समझा, उसके बाद उन्होंने पीछे नहीं देखा। उनकी बुक पढ़िए, आई वुड रिकमेंड, लाइक दीज आर रोल मॉडल्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, यू शुड नो देम in and out, how they've reached. Bharat Parekh says that he did not have money for shoes, और जब भी जूता लेके उनके डीओ ने इंसिस्ट किया कि you have to pair of buyers, फर्स्ट कमीशन से जूता खरीदना है, तो उसी जूते से पापा ने गुस्सा किया, डांटा, शायद मारा भी। नहीं सर, वो डीओ ने भी भगा दिया था ना कि जूते पहन के आओ। वो पहले डीओ ने भगाया, बाद में जब फर्स्ट कमीशन से आने लगे तो उनको घर पे जाके उस चीज की वजह से डांट पड़ी। खुद की बोला कमीशन का ठिकाना नहीं है, उन्होंने असिस्टेंट अपॉइंट करवा दिया डीओ सर ने, तो फिर से मार पड़ी पापा से। तो जैसे जैसे गुरु ने बोला वैसे वैसे वो करते गए, और आज मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई इंश्योरेंस प्रोफेशनल ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता है, और उनसे मिलेंगे कभी तो उनकी मुंह में जबान नहीं है। ही टॉक सो सॉफ्टली, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन। एंड कैसे बने हैं? जस्ट विद द गाइडेंस ऑफ हिज मेंटर। एक एक चीज जो बोलते हैं, कई बार हम मेंटर को डिस्काउंट कर देते हैं, अरे ये तो बोलते ही रहते हैं, इनका तो काम ही ये है। बट वो जो बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं? ट्रस्ट मी, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि उनको सैलरी मिल रही है या आपका ओवरहेड मिल रहा है। दे वांट टू सी देयर चिल्ड्रन ग्रो, एंड यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इफ यू ग्रो, सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? आपने एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया, किसको खुशी होगी सबसे ज्यादा? आपको तो होगी, आपके मेंटर को भी होगी, बिकॉज ही इज सीइंग यू ग्रो। आई सैल्यूट माई मेंटर फॉर दैट, ऑल माई मेंटर्स। बहुत जनों से सीखने को मिलता है। आपको क्या चाहिए वो ऑब्जर्व करो। नो ह्यूमन इज परफेक्ट। हो सकता है आपको कोई चीज किसी की अच्छी ना लगी हो, बट यू हैव अ चॉइस। जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। इज दिस ओके? कैन आई गो टू द नेक्स्ट? हाँ, इसमें बोला जाता है, suppose the same A by H you do for his wife. Yes. Yeah, another 5 minutes. No, 5 minutes. We'll take a break in 5 minutes. अभी यही A by H वाइफ का करना हो तो क्या होगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 59 lakhs. तो क्या दिखेगा? इंश्योरेंस की शायद उतनी जरूरत नहीं है।
नहीं है. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. जिसकी परसेंटेज इनकम घर में ज्यादा आ रही है उसको ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है, और जिसकी 25% से कम आ रही है उसकी बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है. ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं जरूरत है, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. फर्स्ट प्रायोरिटी किसका है? टॉप एंडर्स का. ये मैं पोर्टर की बात कर रहा था. बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे आप गांव से आ रहे हैं, आप उतरे हैं या वीटी स्टेशन पे उतरे हैं, आपके पास 5 बैगेज हैं, एक ओरिजिनल वाइफ और 2 ओरिजिनल बच्चे हैं. Why are you smiling? ओरिजिनल But doesn't change her ना. स्माइल लाना मेरा काम है, बाकी चेंज तो कुछ नहीं हुआ. सिचुएशन वही है, घर वही है, उधर ही जाना है आपने. ओके, आपको 5 बैगेज है, बीवी और 2 बच्चे हैं, और आपको वीटी से या बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन पकड़ के 10-12 स्टेशन आगे जाना है. शाम का टाइम है और आपको पता है कि ट्रेनें कितनी खाली होती है, राइट? आप सामान संभालोगे कि बीवी बच्चे संभालोगे? तो क्या सामान छोड़ोगे? उधर एक कुली मिलता है आपको, बोलता है 500 रुपए लूंगा, विरार तक साथ में चलूंगा, स्टेशन पे विरार छोड़ दूंगा, 500 बैगेज मैं उठाऊंगा, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड, मैं आपका बैगेज पहुंचाने की गारंटी लेता हूं, आपके साथ ही रहूंगा. क्या करोगे? 500 बचाओगे? नहीं दे देंगे, या टैक्सी वाले को दोगे या पोर्टर को दोगे ना? यस तो वही 500 रुपए बीमे के हिसाब से सोचो, राइट. कितना बोझ उठाना है आपको? बच्चों की एजुकेशन, घर का खर्चा, खुद का बुढ़ापा, बच्चों की शादी, ये 4 बोझ आपको उठाने हैं. और ये बोझ उठाने के लिए इतना सा प्रीमियम लगता है, देते हो कि नहीं? वेरी नाइस सर. इसके बाद हम कुछ नंबर्स में खेलेंगे ब्रेक के बाद. इज दैट ओके? यस चाय का ब्रेक, 5 minutes, whatever you want, we'll get back. थैंक यू सो मच. I hope most of you slept. नहीं सर वो नहीं यार, मेरी उम्मीदों में पानी डाल देते हो आप. सर स्लाइड मिल जाएगी. कौन सी चाहिए? मिल जाएगी. एक फटाफट 5 मिनट में आते हैं ना, टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है. स्लाइड ना जितना जल्दी करोगे उतना बहुत जल्दी. छोटी चीज है. आप बोलो क्या चाहिए वो दूंगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर.